Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. As we discussed on the previous video about the verbs and its functions, we discussed different kinds of verbs as finite verb, non-finite verb, auxiliary verb, main verb, and transitive verb, intransitive verb, and ditransitive verbs. So, verb is the central element of a sentence. We discussed if there is no verb, there is no sentence. Being a sentence, verb is mandatory. So in this video, I would like to discuss with you all about the verbs have need of two objects. Just we discussed about the verb has need of one object called transitive verb. The verb has need no object is called intransitive verb. Now in this video, we will discuss the verbs have need of two objects called ditransitive verb. Two objects means out of two, one is direct object and second is indirect object. Direct object means if we are using anything, yes, in a sentence. Indirect object means if we are using the name of any person or pronoun. So two objects are there. So we'll discuss कि वो कौन से verbs हैं जिनको दो objects की need होती है. Yes, so what happens? Our title is verbs with two objects. It means ऐसे verbs जिनको दो objects की जरूरत होती है to complete the sense of sentence. So many verbs can have two objects. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही verb है, many verbs. In English language we have many verbs have need of two objects. और जो two objects की need जिस verb को होती है उसे कहते हैं ditransitive verb. Di means two and transitive means objects. Two objects like mono means one, di means two, tri means three, tetra means four. So di means क्या है? Two and transitive means objects. ऐसे verbs जिनको दो object की need होती है. So usually the objects considered a person and a thing. अब जो दो object हम use करेंगे sentence में उनमें एक object person होगा, दूसरा object एक thing होगी. Person को represent करेंगे with noun or pronoun. And thing is represented with the name of things like book, chair, table, money, bag, pen, pencil, so many things we have. So what happens next is this often happens with verbs that are used to talk about transferring or communicating things from one person to another. ऐसा होता क्यों है? ये two objects कब use होते हैं? It means when person one is communicating or transferring information to another person. It is also happens in the transitive verb. ऐसा नहीं कि सिर्फ ditransitive verb में भी होता है transferring information or communication. It also happen in the transitive verb and intransitive verb. What is the difference? Difference is that it means doing things from somebody. Yes, so it means there is not required of one object to complete the sense. अगर आपको sentence का sense या meaning complete करनी है तो उसमें हमें दो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी. इफ वी आर यूजिंग ओनली वन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट और यू कैन से इनकरेक्ट. ठीक है. सो कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं. आई हैव सम एग्जांपल्स. कुछ ऐसे वर्ब्स हैं यहाँ पे. आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ वर्ब्स. ऐसे वर्ब्स यहाँ पे हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की नीड होती है. व्हेनेवर वी फाउंड एनी वर्ब आउट ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टूड क्लियरली कि इस सेंटेंस में अब हमें दो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी. तो ऐसे कौन से वर्ब्स हैं? नंबर वन इज बेट, बीईटी बेट. तो बेट इज अ डाई ट्रांसिटिव वर्ब. तो बेट को जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे, यस, सो विल अंडरस्टूड कि इसके लिए दो ऑब्जेक्ट की नीड होगी. नेक्स्ट क्या है? ब्रिंग. तो ब्रिंग इज अगेन अ डाई ट्रांसिटिव वर्ब. इट हैज नीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस जब हम कोई थिंग यूज करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस जब हम किसी पर्सन का नेम या प्रोनाउन यूज करेंगे. नेक्स्ट इज बिल्ड, B-U-I-L-D. Build is also a kind of ditransitive verb. Next is buy. That is also a kind of ditransitive verb. Next is cost. Yes, that is also kind of ditransitive verb. फिर इसी तरीके से get है, give है, leave, lend, make, offer, obey, pass, pay, play, post, promise, read,
refuse, sell, send, show, sing, take, teach, tell, throw, wish, write, put. सो देखिए ये क्या है, लिस्ट ऑफ वर्ब्स है. सो इट मीन्स कि अगर इनमें से कोई वर्ब आपको किसी सेंटेंस में यूज करना है तो इनको दो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी. इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे डायट्रांसिटिव वर्ब्स हैं इंग्लिश में. आई हैव टेकन ओनली फ्यू वर्ब्स हियर टू मेंशन the role of ditransitive verbs need of two objects. So whenever we are using any verb out of this list, we have need of two objects. Suppose if I say build है, मान लीजिए, suppose randomly select a verb build. So build is a ditransitive verb, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसके लिए दो ऑब्जेक्ट की नीड होगी. अगर आपको नहीं मालूम है कि ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, डायट्रांसिटिव वर्ब है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट होंगे या कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा. तो सपोज इफ आई से आई बिल्ड अ बिल्डिंग, आई बिल्ड अ बिल्डिंग. अब बिल्डिंग तो बना ली, बट फॉर हुम, किसके लिए बनाई, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. सो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसके साथ दो ऑब्जेक्ट हो गए. लेट्स सपोज आई बिल्ड अ बिल्डिंग फॉर यू. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायट्रांसिटिव वर्ब के लिए दो प्रीपोजिशंस को यूज कर सकते हैं. एक तो टू होती है, दूसरी होती है फॉर. टू एंड फॉर, ओनली टू प्रीपोजिशंस वी हैव जो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे. इट मींस कि जो प्रोनाउन हम सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे उससे पहले एक प्रीपोजिशन या तो टू यूज होगी या तो फॉर यूज होगी. जैसे आई बिल्ड अ बिल्डिंग फॉर यू. यस. सो ये इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंसेस. तो व्हाट हैपेंस, देखिए यहां पे वही चीज कही गई, द थिंग दैट इज गिवन, सेंट, बॉट, थ्रू इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. की जो थिंग है जो सेंटेंस में यूज की गई है, वो चाहे बुक हो, वो चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे बैग हो, मतलब एनी काइंड ऑफ थिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस थिंग को कंसिडर करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड इफ वी आर यूजिंग द पर्सन हु गेट्स इट, अब उसी सेंटेंस में अगर हम किसी पर्सन का नेम या उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं जो उसी थिंग को रिसीव कर रहा है, ले रहा है या दे रहा है, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट मींस नेम ऑफ पर्सन और यूज प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ इट, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उस थिंग को, उस वस्तु को ले रहा है थ्रू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो एक ही होगा. जस्ट टू ऑब्जेक्ट्स वी हैव हियर. सो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बट एक कॉमन थिंग है कि मोस्ट ऑफन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस. कह रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे, एक डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफन क्या होता है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्ब है गिव, तो गिव क्या है, इट इज अ डायट्रांसिटिव वर्ब. अब इसके साथ दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा डायरेक्ट, होगा इनडायरेक्ट. अब इसी अकॉर्डिंग कह रहा है कि मोस्ट ऑफन जो होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस जब किसी का नेम या प्रोनाउन यूज करते. सपोज आई गिव यू अ पेन, ये बहुत इजी होता है, आई गिव यू अ पेन. अब यू जो है इसमें, सपोज सेंटेंस अगर यहां पे लिखे, सपोज आई गिव यू अ पेन, आई गिव यू अ पेन. तो देखिए यू जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन क्या है, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेन का एक थिंग है, पेन एक वस्तु है. तो इट मींस जो सेंटेंस में थिंग होती है उसको कंसीडर करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को. जो किसी पर्सन का नेम हो या प्रोनाउन यूज करें उसको कंसीडर करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो मोस्ट ऑफन कह रहा है कि हम जस्ट डायट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम यूज करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते थे, आई गिव अ पेन. अब इसमें लिख किया. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लाएंगे तब एक हमें प्रीपोजिशन की नीड होगी. तो आई गिव अ पेन टू, टू आ जाएगा, टू यू. आई गिव अ पेन टू यू. अब यू देखिए लास्ट में आया क्योंकि यू क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यू से पहले हमने एक प्रीपोजिशन की यूज किया टू. और जब यू जो है जस्ट डायट्रांसिटिव वर्ब के बाद यूज करेंगे तो देयर नो नीड अ प्रीपोजिशन. तो कह सकते हैं आई गिव यू अ पेन, आई गिव अ पेन टू यू. तो देखिए डिफरेंस है यहाँ पे. बट गिव जो है, suppose give is, it is a ditransitive verb. So friends, come to some examples. अब कुछ examples देखते हैं regarding to the ditransitive verbs. As I have given you the list of ditransitive verbs, अब उनको हम use करेंगे ना sentence, so that we can definitely understood कि ये verb है और इस verb के पास कितने objects होने चाहिए to complete a sense of sentence.
जैसे फर्स्ट सेंटेंस का है आई बेट यू $10। अब बेट जैसे कि मैंने लिस्ट में आपको दिया था, इट इज अ काइंड ऑफ डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इट हैज नीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आई बेट यू, अब देखिए यू दैट इज अ प्रोनाउन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इफ वी आर यूजिंग एनी प्रोनाउन और नाउन दैट इज कंसिडर्ड एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यू जो है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इट इज शॉर्ट फॉर्म आई मींस इनडायरेक्ट, ओ मींस ऑब्जेक्ट। उसके बाद $10 क्या है, दैट इज अ थिंग, $10 इज द थिंग। अब इसको कंसिडर करते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ, डी मींस डायरेक्ट, ओ मींस ऑब्जेक्ट। इफ आई से आई बेट यू, सिर्फ इतना होता आई बेट यू, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट, तो क्वेश्चन हो जाता आई बेट यू मींस व्हाट, तो क्या दिया है। इफ आई से आई बेट $10, क्वेश्चन होता टू हुम, किसको। सो इट मींस टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस इफ वी हैव अ डाई ट्रांसिटिव वर्ब, तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना मैंडेटरी है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा, अब अगर आप इस यू को जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको लास्ट में लाना चाहें और $10 को पहले लाना चाहें, तो क्या चेंजेस आएंगे, सिर्फ एक प्रीपोजिशन टू यूज हो जाएगी बिफोर यू। जैसे आप इसको लिख सकते थे आई बेट $10, आई बेट $10 टू यू, इतना हो जाता आई बेट $10 टू यू। अब यू जो लास्ट में आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उससे पहले एक हमें प्रीपोजिशन लेनी होगी टू। यस, नेक्स्ट इज ही बिल्ड्स द चिल्ड्रन अ ट्री हाउस। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट फिर हमारे पास है, द चिल्ड्रन क्या है, यस अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ नाउन, प्लूरल नाउन है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर सेंटेंस में आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को कंसिडर करे, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो ट्री हाउस क्या है, इट इज अ थिंग। यस, ट्री हाउस का इट इज अ थिंग, क्योंकि ये एक बिल्डिंग है तो इसको बिल्डिंग नॉट कंसिडर्ड एज अ पर्सन, इट इज अगेन यस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द नाउन बट इट इज कंसिडर्ड टू अ थिंग, ये किसी वस्तु की बात करती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं डी ओ मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स से मालूम चल गया है कि बिल्ड जो है ये क्या है, इट इज अ डाई ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसको दो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। इसी नेक्स्ट क्या है, आई बाय यू सम चॉकलेट। अब देखिए यू क्या है, अगेन इट इज प्रोनाउन है, पर्सन को कंसिडर कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सम चॉकलेट क्या है, चॉकलेट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ थिंग, एडिबल थिंग, तो इसलिए इसको कंसिडर करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इससे मालूम चल रहा है कि बाय जो है इट इज अ डाई ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, यू ब्रिंग मी द पेपर। अब देखिए मी क्या है, अगेन इट इज अ प्रोनाउन जो किसी पर्सन को कंसिडर कर रही है, तो इसलिए ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और द पेपर क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज पेपर इज अ काइंड ऑफ थिंग। और ब्रिंग जो है again we can find out it is a ditransitive verb because it has need of two objects. Next क्या है, the repair cost me a lot। अब देखिए द रिपेयर का सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट का, अगेन मैंने आपको बताया कि इट इज अ काइंड ऑफ डाइट्रांसिटिव वर्ब, लिस्ट में दिया है, तो इसके लिए दो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, एक तो मी हो गया, मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अलॉट क्या होगा, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज आई लीव हिज चिल्ड्रन नथिंग व्हेन ही डाइड। अब देखिए क्या है यहाँ पे, हिज चिल्ड्रन, ये पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये चिल्ड्रन अगेन वी नो इट इज अ नाउन, ठीक है, और पर्सन को कंसिडर कर रहा है, तो चिल्ड्रन इट बिकम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नथिंग जो है, नथिंग इज अगेन कंसिडर टू द थिंग्स। सपोज आई डू नॉट नो एनीथिंग, तो नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये सब क्या है, किसी थिंग को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इससे मालूम चल पा रहा है कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स हियर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लीव जो है इट इज अगेन अ डाइट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 7, I'll make you a cake tomorrow। I'll make you a cake tomorrow। अब देखिए you क्या है, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, और केक जो क्या है, अ केक इज अगेन इज इट इज अ काइंड ऑफ एडिबल थिंग, ये भी एक वस्तु जिसको खाया जाता है, ठीक है। तो ये केक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मेक जो यहाँ पे बताया गया है दैट इज अ मेक, इट मींस इट इज अगेन अ डाइट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 8 क्या है, लैंड मी योर बाइक। जस्ट कह सकते हैं यू लैंड मी योर बाइक। तो देखिए मी क्या है, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ
ये इंपरेटिव सेंटेंस है बिकॉज देयर इज द ऑर्डर लैंड मी योर बाइक। सो मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, योर बाइक जो पूरा है ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाइक जो एक थिंग है, बाइक इज अ काइंड ऑफ थिंग एनिमेट है, ठीक है। तो लैंड जो वर्ब यूज हुआ है बिकॉज इट इज यूज इन अ इंपरेटिव सेंटेंस, या ऐसे भी कह सकते थे यू लैंड मी योर बाइक। तो लैंड क्या है, इट इज अगेन डाइट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से नाइन्थ क्या है, दे ओवे हर सिस्टर अ लॉट ऑफ मनी। अब देखिए हर सिस्टर क्या है, ये अगेन एक पर्सन को कंसिडर कर रहा है, रेफर कर रहा है, तो कह सकते हैं इट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मनी इज अगेन अ काइंड ऑफ थिंग। मनी क्या है, थिंग है, इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, तो ये एक थिंग है, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ओवे जो है अगेन इट इज अ काइंड ऑफ डाइट्रांसिटिव वर्ब। लास्ट नंबर 10 क्या है, आई सेंड हर द रिपोर्ट टुमारो। अब देखिए हर क्या है, अगेन इट इज अ प्रोनाउन जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज अ इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट द रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट इज अगेन इट इज अ काइंड ऑफ थिंग, इनएनिमेट है, ठीक है, नॉन लिविंग है, अजीवित कह सकते हैं, ठीक है, मुर्दा चीज है। तो कहते हैं द रिपोर्ट जो है इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंड क्या है, इससे अगेन वी हैव कंफर्म्ड कि सेंड इज अ काइंड ऑफ डाइट्रांसिटिव वर्ब। तो आई यूज, देखिए किस तरीके से मैंने इन सारे डाइट्रांसिटिव वर्ब्स को यूज किया विद टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट ना हो। एवरी वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसे कहते हैं डाइट्रांसिटिव वर्ब्स, मींस ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की नीड होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट मिस कर दिया तो इसका मतलब है कि सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड। So complete the sentence with these verbs like buy, give, refuse, offer, put, throw, just leave, make, obey, send। हर ये वर्ब आपके पास हैं, तो डू नॉट कंफ्यूज। अब इनके साथ हमें दो ऑब्जेक्ट्स लेना मैंडेटरी है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि वी कैन यूज ऑलवेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट इन द सेंटेंस। Just we have discussed the different kinds of sentences here regarding to the ditransitive verbs। और इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले जो है जस्ट आफ्टर ditransitive verb जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यूज किया है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यूज किया है। अब ऐसा नहीं, इट मींस वी कैन यूज आल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द लास्ट ऑफ सेंटेंस। हम इसको चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द पोजीशंस ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट अगर हम सपोज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन है या नाउन है, ठीक है, उसको लास्ट में यूज करना चाहते हैं, तो व्हाट हैपेंस, उससे पहले हमें एक प्रीपोजिशंस का यूज करना पड़ेगा, वो चाहे टू हो या फॉर हो, दोनों में से कोई एक। सपोज देयर इज नो इशू टू यूज टू और फोर प्रीपोजिशंस रिगार्डिंग टू यूजिंग ऑफ अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जैसे मैंने कहा आई गिव यू अ बुक। अब आई गिव यू अ बुक, अब गिव जो है वो डाइट्रांसिटिव वर्ब है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यू को हम लास्ट में यूज करना चाह रहे हैं, इट मींस वी वांट टू यूज यू एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट हम डाइट्रांसिटिव वर्ब के बाद यूज करना चाहते हैं, तो यूज कैसे होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते आई गिव अ बुक यू, ये गलत हो जाएगा। इफ आई से आई गिव अ बुक यू, तो इन केस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कि अगर आप यू जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको लास्ट में यूज करना चाहते हैं, या कोई भी प्रोनाउन हो, यू, हिम, हर, यस, देम, अस, जो लास्ट में यूज करना चाहेंगे, तो व्हाट हैपेंस, एक रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर का, कि हमेशा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम एक प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे है आई गिव अ बुक टू यू, तो टू प्रीपोजिशंस को यूज करेंगे, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि अब हमने क्या करा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब बुक जो है वो डाइट्रांसिटिव वर्ब गिव के बाद यूज किया है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिया है सेंटेंस के लास्ट में। जब भी आप किसी प्रोनाउन को जो किसी पर्सन को कंसिडर करें, नाउन जो किसी पर्सन को कंसिडर करें, उसको लास्ट में यूज करें, तो उससे पहले एक प्रीपोजिशन यूज करना जरूरी है, वो चाहे टू हो या फॉर हो, ठीक है। कह सकते हैं आई गिव अ बुक फॉर यू, ये भी हो सकता है आई गिव अ बुक टू यू, आई गिव अ बुक फॉर यू। तो फॉर या टू में से कोई एक प्रीपोजिशंस यूज करेंगे। अदरवाइज अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट पहले यूज करना है गिव के बाद में, तब हमें टू प्रीपोजिशंस यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया आई गिव यू अ बुक,
तो टू प्रीपोजिशन जो है ऑलवेज वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है जब वो लास्ट में यूज हो सेंटेंस के, ये कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है जिसमें हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में यूज किया है। जैसे लिखा है आई गेव द की टू जॉन, ठीक है। अब गेव क्या है, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव, ये डायट्रांसिटिव वर्ब है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, देखिए द की जो है, यस वी नो इट इज अ थिंग, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ आइटम। तो अब ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जॉन को हमने यूज किया है, दैट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको सेंटेंस के लास्ट में यूज किए तो उससे पहले एक प्रीपोजिशन को यूज किया टू, दैट इज मैंडेटरी। सो आई गेव द की टू जॉन, जब जॉन को हम द की जगह यूज करें और द की को जॉन की जगह यूज करें तब ये प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। इफ आई से आई गेव जॉन द की, आई गेव जॉन द की, अब टू जॉन, अब आई गेव टू जॉन, नो। इफ आई से आई गेव टू जॉन द की, दैट इज इनकरेक्ट। कहने का मतलब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट आफ्टर डायट्रांसिटिव वर्ब के बाद यूज करेंगे तो ये प्रीपोजिशन टू जो है वो रिमूव हो जाएगा, डू नॉट यूज इट। लेकिन जब इसी को लास्ट में यूज करेंगे तब हमें एक प्रीपोजिशन की नीड पड़ेगी, टू और फॉर। नेक्स्ट इज आई हैंडेड माई बुक टू द टीचर। अब देखिए बुक जो है, अगेन वी नो वेरी वेल इट इज अ काइंड ऑफ थिंग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब उसके बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया है टीचर, तो टीचर इज अ नाउन। टीचर क्या है, एक एनिमेट चीज है। बुक, तो बुक इज आल्सो नाउन लेकिन वो इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है। डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन कंसीडर करेगा वो कहलाएगा नॉन लिविंग, इनएनिमेट, अजीवित, ठीक है। और जो किसी पर्सन को नाउन प्रोनाउन कंसीडर करेगा वो होगा इनएनिमेट, कह सकते हैं लिविंग पर्सन। तो व्हाट हैपेंस हियर, तो बुक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब हमने टीचर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको लास्ट में यूज किया है सेंटेंस के, तो इसीलिए टीचर से पहले हमें एक प्रीपोजिशन की नीड पड़ेगी टू और फॉर, तभी ये कंप्लीट सेंटेंस बन पाएगा। तो क्या आई हैंडेड माई बुक टू द टीचर, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते थे आई हैंडेड द टीचर माई बुक, आई हैंडेड माई टीचर अ बुक, क्योंकि अब माई टीचर को यूज कर लिया है हमने जस्ट आफ्टर डायट्रांसिटिव वर्ब, तो वहां पे किसी भी प्रीपोजिशन की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट इज ही सेंट सम फ्लावर्स टू द डॉक्टर। अब देखिए सेंट क्या है, दैट इज अगेन डायट्रांसिटिव वर्ब। अब फ्लावर्स क्या है, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि फ्लावर्स क्या है, नॉन लिविंग है, यस। तो व्हाट हैपेंस कि जब इसको मैंने पहले यूज कर लिया तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर इज अ यस नाउन, बट एक इसको रेफर कर रहा है किसी लिविंग पर्सन को, एनिमेट पर्सन को, जीवित पर्सन को। तो इसीलिए ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जब इसको लास्ट में यूज किया, देखिए हमने इससे पहले एक प्रीपोजिशन टू का यूज किया है, ठीक है। अगर हम इसको सेंटेंस को ऐसे लिखते, ही सेंट द डॉक्टर सम फ्लावर्स, ही सेंट द डॉक्टर सम फ्लावर्स, तब इसमें प्रीपोजिशन टू यूज नहीं होगा। और अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट डायट्रांसिटिव वर्ब के बाद यूज करेंगे तब फिर प्रीपोजिशन ये रिमूव हो जाएगी, तब इसका यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मदर बॉट द आइसक्रीम फॉर यू। अब देखिए आइसक्रीम क्या है, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ थिंग जो इनएनिमेट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नो इश्यू ऑफ इट। बॉट जो है दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ बाय, बी यू वाई, बाय जो फर्स्ट फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म है, बॉट ही थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ऑफ द वर्ब। या कह सकते हैं इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल और कहते हैं सिंपल पास्ट। अब देखा आइसक्रीम का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक थिंग है, इट इज इन एनिमेट। तो इसके बाद जब हमने यू यूज किया, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी पर्सन को रेफर कर रहा है। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। हमने यूज किया फॉर, मदर बॉट आइसक्रीम फॉर यू। देखिए फॉर या टू, कोई दोनों में से एक प्रीपोजिशन को यूज करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन यूज कब करना है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ पर्सन को हम लास्ट में यूज करें सेंटेंस के, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रोनाउंस, कि अगर दोनों प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पे क्या है, एक नाउन है एक प्रोनाउन है, देखिए ठीक है, या दोनों नाउन है, जैसे द की क्या, ये भी नाउन है, जॉन भी नाउन है, बुक भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, फ्लावर्स भी नाउन है और डॉक्टर भी नाउन है, आइसक्रीम भी नाउन है, यू प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंस कि अगर सेंटेंस में दोनों प्रोनाउन हो, ये तो दोनों नाउन है, नो इशू। इफ वी हैव टू नाउन्स तब तो हम उसको यूज कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, नो इशू ऑफ इट। इफ वी हैव टू प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस एंड देयर इज अ डायट्रांसिटिव वर्ब, कि सेंटेंस में
दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को रेफर कर रहे हैं और डाइट्रांसिटिव वर्ब है, तो व्हाट हैपेंस कि हम उस कंडीशन में कौन से प्रोनाउन पहले यूज करेंगे, ठीक है। सो क्या है, व्हेन यू बोथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंस, देखिए बोथ ऑब्जेक्ट्स मींस कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों प्रोनाउन है, उनमें से कोई भी नाउन नहीं है। जैसे इसमें दोनों नाउन हो सकते हैं, एक नाउन एक प्रोनाउन है, जैसे टीचर भी नाउन है, फ्लावर भी नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है, की भी नाउन है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर सेंटेंस में डाइट्रांसिटिव वर्ब के बाद दोनों प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, एक प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, एक प्रोनाउन किसी थिंग को कंसीडर कर रहा है, एक प्रोनाउन किसी पर्सन को कंसीडर कर रहा है, तो उस कंडीशन में पहले प्रोनाउन कौन यूज होगा, इट मींस जस्ट आफ्टर डाइट्रांसिटिव वर्ब के कौन यूज होगा, ठीक है। तो कह रहा है इट इज कॉमन, कह रहा है कॉमन चीज है कि इफ वी हैव टू प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस एंड बोथ आर यूजिंग एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इट इज कॉमन पुट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहां यूज करेंगे, लास्ट में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। जैसे पर्सन को कौन से प्रोनाउन रेफर करते हैं, हिम, हर, देम, अस, मी, ये प्रोनाउन क्या है, पर्सन को रेफर करते हैं। ये किसी बुक को रेफर, किसी थिंग्स को रेफर नहीं कर सकते हैं। थिंग को रेफर करता है इट, इट इज अ प्रोनाउन जो हम किसी थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो प्रोनाउन रेफर कर रहा होगा उसको हम लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। और उस, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन है, तो उससे पहले एक प्रीपोजिशंस की नीड होती है, टू या फॉर। तो देखिए सेंटेंस है यहाँ पे, लैंड देम टू हर, ठीक है, लैंड देम टू हर। अब इसमें देखिए इसमें दो प्रोनाउन है, एक तो देम है और दूसरा क्या है, हर है। या लैंड इट टू हर या लैंड देम टू हर, दोनों प्रोनाउन है, ठीक है। अब लैंड क्या है, इट इज अ डाइट्रांसिटिव वर्ब है। अब जब हमने हर जो है, ये प्रोनाउन हर जो किसी पर्सन को कंसीडर कर रहा है, ठीक है, तो इसको लास्ट में यूज किया है। तो इससे पहले हमने यूज किया है ए टू एज अ प्रीपोजिशन। लैंड हर टू देम ये भी कर सकते थे, लैंड हर टू देम। अगर यहां पे सेंटेंस होता लैंड इट, जैसे होता LEND, लैंड इट टू हर, लैंड इट टू हर, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर इसको लिखते लैंड हर टू इट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इट जो है यहाँ पे किसी थिंग्स को कंसिडर कर रहा है। वो बुक हो सकती है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, पेन हो सकता है, मार्कर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है। तो इसका मतलब जब हम ऐसे प्रोनाउन को जो किसी थिंग्स को कंसिडर कर रहा है, तो अगर उसको लास्ट में यूज करेंगे तो उससे पहले टू प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे कर सकते थे, लैंड हर इट, लैंड हर इट। व्हाट हैपेंस, रूल कहता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, एक क्या है, प्रोनाउन जो पर्सन को कंसीडर कर रहा है, एक प्रोनाउन किसी थिंग्स को कंसीडर कर रहा है, तो उसमें कहते हैं कि जो प्रोनाउन जो पर्सन की बात कर रहा होगा उसको लास्ट में यूज करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टू जो है वो हर के पहले यूज किया, क्योंकि हर किसी पर्सन को रेफर कर रहा है। इसी तरीके से लैंड इट टू हर है, नॉट लैंड हर टू इट नहीं। तो लैंड इट टू हर ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इट जो है ये किसी थिंग्स को कंसीडर कर रहा है और हर जो है किसी पर्सन को कंसीडर कर रहा है, इसलिए इससे पहले हमने यूज किया प्रीपोजिशन टू। इट इज अ रूल। नेक्स्ट इज यू सेंट इट टू देम। अब देखिए, अब सेंट क्या है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द सेंड, इज अ वर्ब। अब इसके दो ऑब्जेक्ट है, इट है, दो प्रोनाउन है, और देम इज आल्सो अ प्रोनाउन। अब इट जो प्रोनाउन है वो किसी थिंग्स को कंसीडर कर रहा है, इसलिए इसको पहले यूज करेंगे, और जो प्रोनाउन किसी पर्सन को रेफर कर रहेगा उसको लास्ट में यूज करेंगे। जब उसको लास्ट में देम यूज किया, जैसे देम क्या किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, तो इसीलिए इससे पहले हमने प्रीपोजिशन टू का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव इट टू मी। अब देखिए गिव क्या है, अब मैंने आपको बताया गिव इज अगेन अ काइंड ऑफ डाइट्रांसिटिव वर्ब। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, दोनों प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है और मे भी प्रोनाउन है। तो व्हाट हैपेंस, रूल कहता है कि जब आपके पास ऐसे प्रोनाउन हो जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, तो उसको लास्ट में यूज करेंगे। जैसे मी है, तो मी क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको लास्ट में यूज किया और उससे पहले प्रीपोजिशन को यूज किया। हम ऐसे नहीं कह सकते थे गिव मी इट, नहीं, गिव मी टू इट नहीं, गिव मी टू इट, ये गलत हो जाता। अगर मैं यहाँ पे लिखूं गिव, GIV, गिव मी टू इट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू जो प्रीपोजिशन है वो कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज नहीं होती, क्योंकि इट जो है वो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, किसी थिंग्स की बात कर रहा है, क्योंकि इट ऐसा प्रोनाउन है
जो नॉन लिविंग कह सकते हैं इनएनिमेट या अजीवित या मुर्दा चीजों के लिए यूज होती है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स। इसी तरीके से मैंने आपसे डिस्कस किया ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब्स। आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स, मीन्स कि ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की नीड होती है। एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जब हम प्रोनाउन या नाउन की बात करते हैं जो किसी पर्सन को रेफर करता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब सिर्फ एक प्रोनाउन या नाउन किसी थिंग्स को रेफर करता है। तो लेकिन हम दोनों प्रोनाउंस को, दोनों नाउन्स को या दोनों ऑब्जेक्ट्स को अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने का एक मेथड है। ठीक है, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट आफ्टर डाई ट्रांसिटिव वर्ब यूज करते हैं तब टू प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। जब यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे तो इससे पहले एक प्रीपोजिशंस का यूज करना मैंडेटरी है, वो टू हो या फॉर हो, दोनों में से कोई एक। सिर्फ दो ही प्रीपोजिशंस है, ये भी याद रख लीजिए कि डाई ट्रांसिटिव वर्ब सिर्फ दो प्रीपोजिशंस ले सकता है, एक टू होगा या फॉर होगा, तीसरी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी प्रीपोजिशंस है, इन, इनटू, विथ, बिहाइंड, ये कोई भी प्रीपोजिशन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आएंगी। ओनली टू प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, टू या फॉर, वो ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं जब वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि टू प्रोनाउंस, जब दो प्रोनाउंस आप यूज करेंगे एक ही सेंटेंस में आफ्टर डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स, तो रूल कहता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन रेफर करेगा उसको आप लास्ट में यूज करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, हिम, हर, देम, अस, ठीक है, मी, इस तरीके से। तो अगर ये प्रोनाउंस हैं तो वो लास्ट में आएंगे और उनसे पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर को यूज करेंगे। और जो प्रोनाउंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, इट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? जस्ट आफ्टर डाई ट्रांसिटिव के बाद आएगा, जैसे यहाँ पे इट आया उस तरीके से। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल द डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स। तो if you have any doubt regarding to any kind of verb, transitive, intransitive, ditransitive, or any other form of the verb, please ask the questions and ask some other types of questions too, and give some comments in my comment box, give feedback, suggestions कि हम और अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं। I have need of your valuable suggestions, ideas, your concepts, yes, expressions, so many things. So I request you all, please share this video with your friends, colleagues, classmates to understand the exact format of the transitive, intransitive, and ditransitive verbs. Thank you so much.